A very good morning, student. Welcome to Standard 4. Today in this video, I'll explain you chapter 5, Down the Rabbit Hole of your English book. It is an adventurous story. In this story, we will study about a little girl whose name is Alice and a rabbit. So, without wasting our time, let's now read this story. Alice is a little girl who suddenly finds herself in Wonderland. Alice एक छोटी लड़की है जो अचानक खुद को वंडरलैंड में पाती है. Read about some of her adventures there. Let's go to read what adventures happened to her and how she reached Wonderland. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Alice थक कर जब नदी के किनारे अपनी बहन के साथ बैठी थी तब उसे नींद आ जाती है. उसी समय उसको नींद में सपने में एक वाइट फर वाला रैबिट जिसके पिंक आईज है दौड़ता हुआ दिखाई देता है और उसके पास आता हुआ दिखता है. There was nothing so very remarkable in that. Alice did not think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, oh dear, I shall be late." वो रैबिट देखने में तो बिल्कुल दूसरे नॉर्मल रैबिट्स के जैसा ही दिख रहा था, पिंक आइज वाइट फर, बट एलिस को वो रैबिट फील होता है कि वो बोलता हुआ उसके पास से गुजर रहा है कि ओ डियर मैं लेट हो जाऊंगा. When the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet, for the suddenly realized that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. और वो रैबिट अपने वेस्टकोट से एक वॉच निकालकर पहनता है और जल्दी जल्दी आगे दौड़कर जाता है. और एलिस जब ऐसे रैबिट को देखती है फर्स्ट टाइम जिसने वेस्टकोट पहना है और वॉच भी लगाता है, तो उसको देखकर वो उसका पीछा करने स्टार्ट करती है, क्योंकि वो ऐसा तो कभी अपने लाइफ में नहीं देखी थी कि कोई भी रैबिट वेस्टकोट पहनता हो या वॉच लगाता हो. Burning with curiosity, she ran across the field after it and fortunately was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. और उसका पीछा करते करते इच्छुक होकर उसका पीछा करती है कि वो आखिर कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा. उसको पीछा करते करते वो फाइनली सौभाग्यवश वो एक ऐसे जगह पहुँचती है जो रैबिट का होल था और वो रैबिट वो उसी होल में इन कर रहा होता है. Down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. और रैबिट का पीछा करते करते एलिस भी, जब रैबिट अंदर जाता है तो एलिस भी उस होल के अंदर चली जाती है बिना सोचे कि वो वापस इस दुनिया में कैसे आएगी, वापस इस होल से वो बाहर कैसे निकलेगी. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she started falling down a very deep well. Down she fell upon a heap of sticks and dry leaves. और खरगोश का पीछा करते करते वो भी होल में इन कर जाती है. और जो रैबिट होल था वो बहुत स्ट्रेट लंबा सा सुरंग था और उसी सुरंग में वो जब इन करती है तो वो सुरंग में थोड़ा सा दूर जाने के बाद वहाँ पे बीच में कुछ और डीप गड्ढा आ जाता है. तो उसी के कारण सडनली जो एलिस है वो नीचे उस गड्ढे में गिर जाती है और बिना कुछ सोचे वो बस नीचे गिरते जाती और वो जो गड्ढा था वो बहुत ही गहरा था और वो नीचे गिरती और फाइनली वो लास्ट में एक लीव्स और स्टिक्स के हीप बंडल्स के ऊपर जाकर गिर जाती है. Alice was not a bit hurt and she jumped up onto her feet in a moment. और एलिस जब वो उस बंडल पे गिरती है तो उसे चोट नहीं लगता है और वो उसी टाइम अपने पैर पे खड़े हो जाती है.
She looked up, but it was all dark above. Before her was a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. जब वो खड़े होकर देखती है तो उसको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और सामने एक लंबा सा हॉल नज़र आता है और हॉल के छत पर दोनों साइड से लैंप लटके होते हैं. Suddenly she came upon a three-legged table, all made of solid glass. There she found a tiny golden key. She looked around and saw a low curtain, and behind it was a little door about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted. और जब वो उस हॉल में आगे बढ़ती है तो अचानक एक 3 पैर वाले शीशे के टेबल के पास पहुंच जाती है. वहाँ उस टेबल पर एक गोल्डन की रखा होता है और जब उस टेबल के बगल में वो देखती है तो एक पर्दा लगा होता है. उस पर्दे के पीछे एक छोटा सा गेट होता है जिसका हाइट सिर्फ और सिर्फ 15 ही इंच थे और वो उस गेट में इन करने का कोशिश करती है और बट वो कर नहीं पाती क्योंकि ये गेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा है. तो उसके बाद वो गोल्डन की से उस दरवाजे को खोलने का कोशिश करती है. तभी Alice opened the door and saw a lovely garden, but she could not even get her head through the doorway. Alice दरवाजे को उस चाबी से खोल देती है. खोलने के बाद वो देखती है क्या कि वो गार्डन एक सामने में बहुत ही सुंदर सा गार्डन है, बट वो उस सुंदर से गार्डन में जा नहीं पाती है. क्यों? क्योंकि ये डोर जो है काफ़ी छोटा है और उसमें ये काफ़ी बड़े साइज़ की होने का इन नहीं कर पाती है. She found a little bottle on the table, and round the neck of the bottle was a paper label with the words "Drink Me" beautifully printed on it in large letters. Alice tasted it, and finding it very nice, she very soon finished it off. Alice जब बगल में देखती है तो उस टेबल के बगल में एक बॉटल रखा होता है जिस बॉटल के ऊपर एक पेपर का लेबल लगा होता है और उस पर कैपिटल लेटर में ब्यूटीफुली प्रिंट किया हुआ बड़े बड़े लेटर में ड्रिंक मी लिखा होता है. इट मीन्स मुझे पियो. एलिस उस बॉटल में इसको उठाकर थोड़ा सा पहले टेस्ट करती है उसमें जो भी रखा होता है लिक्विड. उसके बाद उसको वो अच्छा लगता है तो वो उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, पूरा पी लेती है. She was now 10 inches high and was the right size for going through the little door into that lovely garden. और उस बॉटल में रखे हुए लिक्विड को पीने के बाद वो अब 10 इंच की हो जाती है, छोटी हो जाती है और ये 10 इंच का साइज उस गेट में जाने के लिए इनफ है. वो ईजिली उस गेट से गार्डन में जा सकती है. बट she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it. But वो गार्डन में तो चली जाती है लेकिन वो चाबी ले जाना भूल जाती है और चाबी अभी कहाँ रखा था? गेट को खोलने के बाद वो उस टेबल पे ही चाबी को रख देती है और वापस जब उस चाबी को लेने जाती है तो क्योंकि इसका साइज अब बहुत छोटा हो गया है तो वो उस टेबल के ऊपर रखे हुए चाबी तक पहुंच ही नहीं पाती है. She could see the key quite plainly through the glass, and she tried her best to climb up one of the legs of the table, but it was too slippery. वो उस चाबी को शीशे के रखे हुए टेबल पर देख सक रही थी क्योंकि ये शीशा का है तो ट्रांसपेरेंट है तो ईजिली वो देख पाएगी. देख तो पा रही थी बट उसको उठा नहीं पा रही थी, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी और ये बहुत बार कोशिश करती है कि टेबल के जो लेग है उसके ऊपर चढ़कर वो उस चाबी को उतार ले, बट क्योंकि ये टेबल ग्लास का बना है तो ये काफ़ी स्लिपरी होने के कारण कोशिश करने के बाद भी उस पर चढ़ नहीं पाती है. Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. तुरंत उसी समय उसका ध्यान फिर एक और शीशा का बना हुआ ग्लास के पास जाता है जो टेबल के पास ही रखा था. She opened it and found it a very small cake on which the words "Eat me" were beautifully marked in currants. Well, I'll eat it, said Alice, and if it makes me grow larger,
I can reach the key, and if it makes me grow smaller, I can creep under the door. So either way, I'll get into the garden, and I don't care which happens. फिर जब उस शीशे के बक्से को देखती है और एलिस जब उसको खोलती है तो उसमें एक छोटा सा केक रखा होता है और उस केक के ऊपर लिखा होता है क्या, इट मी, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो इट मी का मतलब क्या होता है कि मुझे खाओ। तो उसको वो सोचती है एलिस कि मैं इस केक को खाऊंगी और इस केक को खाने के बाद अगर मैं बड़ी हो जाती हूँ तो मैं आसानी से चाबी को लेकर तब वापस गार्डन में जाऊंगी, और अगर मैं छोटी हो जाती हूँ तो मैं गेट के नीचे से स्लाइड करके निकल जाऊंगी। और अब क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, वो देखा जाएगा। सो सी सेट टू वर्क एंड वेरी सून फिनिश्ड ऑफ द केक। और यह सोचकर वो तुरंत ही सारे केक को खा लेती है, ख़त्म करती है, फिनिश करती है। श्योर इनफ सी बिगैन टू ग्रो एंड ग्रो टिल हर हेड हिट द सेलिंग। और केक फिनिश करते ही वो अब धीरे 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 इतनी बड़ी हो जाती है कि अब उसका सर जो है छत से टकराने लगता है। ओके, दिस वॉज योर 5th चैप्टर adapted from Alice Adventure in Wonderland, and this story was written by Lewis Carroll. If you understood this chapter properly, everyone, then you can solve questions of this chapter in your notebook. Okay, thank you. Bye.